رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معزز مکرم علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے سورہ اسراء کی آیت نمبر 32 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے زنا کے تعلق سے بیان فرمایا ہے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ مجھے معلوم چلا ہے کہ ہمارے گاؤں سماج کے اندر ابھی جو سود کے بارے میں شیخ محترم بیان کیے، یہ تو عام ہے ہی، لیکن شہروں میں اور سٹی میں یہ باتیں سنی جا رہی تھی کہ زنا وہاں عام ہے، لیکن ہمارے گاؤں میں، محلے میں، سماج میں، سوسائٹی میں یہ زنا اور بدکاری اس طریقے سے تیزی سے بڑھ رہا ہے جیسے کہ قیامت جیسے قریب ہے. میرے محترم بھائیوں، آج کے اس مختصر بیان میں آپ کے سامنے زنا کی ہلاکتیں، زنا کی کیا کیا تباہ کاریاں ہیں، آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات کہنے اور حق بات سننے کی مجھے اور آپ کو توفیق نہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اے لوگو، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب تک جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی وسائل ہیں، اس کے قریب تک نہیں پہنچنا ہے. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اس لیے کہ یہ بدکاری، اس لیے کہ زناکار، یہ زنا اتنا بڑا جرم ہے کہ ہمیشہ سے انہو کان فاحشہ، کہ ہمیشہ سے بدکار اور بے حیائی اور یہ برا راستہ رہا ہے. میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 30-31 سے فرماتے ہیں کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں سے کہہ دیں آپ کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہاری پاکیزگی کے لیے بہتر ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اے نبی، آپ مومنہ عورت سے کہہ دیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. آپ نے ان دو آیتوں سے ملاحظہ فرمایا. ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زنا کے قریب نہیں جانا ہے. دوسری آیت میں سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 32 سے فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب آئیے آپ کے سامنے ایک بات دیگرے زنا کی کیا کیا سزائیں دنیا میں ہیں. ایک مرد، ایک عورت، ایک نوجوان لڑکا لڑکی اگر وہ جرم میں مبتلا ہو جائے، زنا ہو جائے اس سے، تو اس کی کیا کیا سزائیں دنیا ملتی ہے اور اخروی زندگی میں، قیامت کے دن، آخرت میں کیا کیا سزا ملے گی. انشاءاللہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے ایک بات دیگری گنانے چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی سزا دنیا میں جو زنا کرنے والے مرد حضرات ہیں وہ سنیں. زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورت سے اہل ایمان کے لیے ایسے لوگوں سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا ہے. نکاح حرام ہے. اگر پتا چلا کہ اس کے گھر میں زنا ہو گیا ہے مرد عورت سے، تو یہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا.
अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नूर की आयत नंबर 3 फरमाते हैं, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिम ज़ालिका लिल मुमिनीन। ज़िना करने वाले मर्द निकाह नहीं करता है मगर ज़िना करने वाली औरत से या फिर मुशरिका से। ज़िना करने वाली औरत निकाह नहीं करती है मगर ज़िना करने वाले मर्द या मुशरिका से। वहुर्रिमा अलल मुमिन वहुर्रिमा ज़ालिका लिल मुमिनीन, और ये निकाह अहले ईमान पर हराम है। ये दुनिया में पहली सजा है कि जो ज़िना करते हैं। इस आयत के अगर बैकग्राउंड पढ़ेंगे आप, अहले इल्म बैठे हुए हैं, आप तमाम हजरात से बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि इस आयत के पेश मंजर, इस आयत के शान नुज़ूल जो बड़ा जबरदस्त वाकया है, इस वाकये को आप सुने कि सहाबा कराम किस तरीके से अपनी इज्जत व आबरू, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कैसे करते थे। अल्लाह, सहाबा कराम कैसे अल्लाह से डरते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस कहते हैं कि हजरत मरसद बिन अबी मरसद अल-गनवी, क्या नाम है, हजरत मरसद बिन अबी मरसद अल-गनवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं उसके बारे में हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र कि ये बहुत बड़ा पहलवान और बहुत ही नौजवान किस्म का हट्टा कट्टा नौजवान था। कहते हैं कि इनका काम क्या था, मक्के के अंदर जो कैदी थे उस कैदियों को छुड़ाते थे और मदीना लेके आते थे। कहते हैं कि एक कैदी से उनका वादा था, हज़रत मरसद बिन अबी मरसद का वादा यह था कि मैं तुमको मक्के की कैदियों से कैद खाना से निकाल कर मदीना लेकर आऊंगा। ये एग्रीमेंट था, कि वादा था। इस वादे के मुताबिक हज़रत मरसद बिन अबी मरसद अल-गनवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का पहुंचते हैं। चांदनी रात है, बहुत तवज्जो चाहूंगा आप लोगों का। चांदनी रात है, मक्के की दीवारों में से एक दीवार के साये में वहां बैठते हैं। इतने में अनाक नामी जो जमाने जाहिलियत में हज़रत मरसद गनवी के महबूबा थी, आप अपने जबान में गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं। जमाने जाहिलियत में इस्लाम से पहले इनके आपस में ताल्लुकात थे। उसके साये से जब करीब आया तो अनाक नामी औरत ने, जो फाहिशा बदकार थी, कहा कि क्या आप मरसद हो? कहा कि हाँ मैं मरसद हूं। कहा तो वेलकम, खुश आमदीद कहा। और कहती है वो अनाक नामी औरत, चांदनी रात है, कोई नहीं है, कैद खाने में गए और अपनी दोस्त जो जिससे वादा किया था छुड़ाने के लिए गए। वो कहती है अच्छा मौका है, चलो आज की रात अयाशी करते हैं, आज ज़िना करते हैं। अल्लाहु अकबर। अहले ईमान की मोमिन की आजमाइश कितनी बड़ी होती है। सारे असबाब हैं, वसाइल हैं, ज़िना के तमाम वसाइल मौजूद हैं, कोई देखने वाला नहीं। हज़रत मरसद बिन अबी मरसद गनवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, वो खुद कहते हैं वहर्रमल्लाहु ज़िना, ऐ अना मेरी दोस्ती आपके साथ है, तुम मेरी दोस्त हो, ये ज़माने जाने से पहले, लेकिन अल्लाह ने ज़िना को हराम करार दिया है। अल्लाह ने ज़िना को हराम करार दिया है, मैं ज़िना नहीं कर सकता। चुनांचे वो औरत, वो दोस्त, वो महबूबा अनाक बहुत ज्यादा इसरार करती है, लेकिन जब देखता है कि हज़रत मरसद राजी नहीं है तो वो हंगामा खड़ा कर देती है। कहते हैं खैमे वालों, अरे मक्के वाले, तुम्हारे कैदी छुड़ा के लेके भाग रहे हैं, इसे पकड़ो, इसको मारो, इसको जेल में डालो। चुनांचे हज़रत मरसद बिन अबी मरसद अल-गनवी रज़ियल्लाहु ताला अपनी जान बचाते हुए एक गार में, एक पहाड़ में, गार में जाकर घुस जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पीछे 8 मक्के के बड़े बड़े लोग मेरे पीछे आ रहे थे मुझे पकड़ने के लिए। यहां तक कि जिस दहाने में, जिस गार में मैं था, ऊपर 8 लोग हैं, यहां तक कि मेरे करीब पहुंचे, नीचे देखे तो अपने पैर की तरफ देखते तो मुझे देख लेते। वो कहते हैं कि उन लोगों ने पेशाब किया। अल्लाह अकबर। उन 8 लोगों ने पेशाब किया, पेशाब के कतरे मेरे चेहरे और जिस्म पर पड़ते थे, लेकिन मैं उस तक नहीं कहा, लेकिन अल्लाह ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। चुनांचे वो लोग चले गए।
जो पकड़ने आए थे वो चले गए। कहते हैं कि उसके बाद मैं जिस दोस्त से वादा किया था कि तुमको मैं किसी तरीके से किसी हाल में कैद खाने से निकाल कर मदीना लेके जाऊंगा, वो लोग चले गए। फिर उस दोस्त को मक्के से उठाकर अपने कांधे पर लेकर मदीना लेके गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पहुंचे। पहुंचने के बाद पूरा वाकया सुनाया और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं अनाक से शादी करना चाहता हूं, मेरी वो महबूबा है, अभी मेरे साथ हमदर्दी है, मोहब्बत है, मैं उसे शादी करना चाहता हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कोई जवाब नहीं दिए, कोई, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं था, खामोश रहे। आसमान से वही नाजिल हुई, अल्लाह ने फरमाया अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिम अलल मुमिनीन। इस आयत के नाजिल के बाद हज़रत मरसद को बुलाए और सुनाया। उसके बाद कहते हैं, टाइम फरमाते हैं, मरसद तुम निकाह नहीं कर सकते। चुनांचे हज़रत मरसद बिन अबी मरसद गनवी रज़ियल्लाहु तआला इस आयत के नाजिल होने के बाद अपने महबूबा जो कल्बी ताल्लुक था, अल्लाह की आयत सुन के वो निकाह छोड़ देते, निकाह नहीं करते। अल्लाहु अकबर। सहाबा कराम किस तरीके से अपनी इज्जत, अपने शर्मगाह की हिफाजत करते थे। अल्लाह, पहली चीज, पहली सजा दुनिया में जो जिना करते हैं वो सजा ये कि उससे निकाह करना हराम है। नंबर 2, दूसरी सजा ये इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर, कि जो जिना करते हैं चाहे मर्द हो या औरत हो, उनकी सजा ये कि गांव में या किसी अहम मामलात में, निकाह में उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं। ऐसे लोगों की कोई एतबार नहीं, एक बार नहीं 1000 बार कसमें खाएं, गवाही दें, कोई गवाही काबिल कबूल नहीं। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तजूज़ु शहादतु खाइन वाला खाइनतिन वला ज़ानिन वाला ज़ानियतन। कहते हैं कि खयानत करने वाले मर्द, खयानत करने वाली औरत, जिना करने वाले मर्द, जिना करने वाली औरत की कोई शहादत, कोई गवाही काबिल कबूल नहीं। इस हदीस को इमाम अबी दाऊद ने रिवायत किया है। इसी तरीके से तीसरी सजा दुनिया के अंदर जाने की, जिना करने वाले की ये कि उससे ईमान को छीन ले जाता है, अब वो ईमान वाला नहीं रहता है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी सजा है। अगर आपके पास, मेरे पास ईमान ही ना हो, तौहीद ना हो, तो ऐसा इंसान जिंदा लाश है, मर गया तो डायरेक्टली जहन्नम है उनके लिए। जो जिना करते हैं या करती हैं, उनकी सजा ये है, उनकी सजा ये है कि उसे ईमान छीन लेते हैं अल्लाह ताला। प्यारे नबी फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस है, फरमाते हैं, इन ज़ना व शरिबल खम्र, इन ज़ना व शरिबल खम्र नज़अल्लाहु मिनल ईमान। जो शख्स भी जिना करे या शराब पिए, जो शख्स भी जिना करे या शराब पिए, नज़अल्लाहु मिनहुल ईमान, तो अल्लाह उससे ईमान को खींच लेता है। कमा यखलउ नासुल कमीसा मिन रासिही, जैसे कि इंसान अपने सर से कपड़ा निकालता है, ऐसे अल्लाह ताला उस इंसान से जिसने जिना किया है, जिसने जिना की है, उसे ईमान को खींच लेता है। अल्लाह अकबर। चौथी सजा मैं इख्तिसार के सामने आपके सामने बयान कर रहा हूं। चौथी सजा जिना की ये दुनिया में कि उसकी दुआएं काबिल कबूल नहीं। रोए गिड़गिड़ाए, रात के तन्हाई में रोए, दिन के उजाले में रोए, उसकी कोई दुआ काबिल कबूल नहीं। कितनी बड़ी सजा है, सोचो। हज़रत उस्मान बिन अबी आस रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं, प्यारे नबी फरमाते हैं, तुफ्तहु अब्वाबुस समाए निस्फल लैल, आधी रात को 12 बजे, आधी रात को आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तुफ्तहु अब्वाबुस समाए निस्फल लैल फयुनादी मुनादी, एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है, हल मिन साइल, है कोई साइल, है कोई सवाल करने वाला, मांगने वाला, मैं उसको मांग के मुताबिक, सवाल के मुताबिक दूं। हल मिन दाइन, है कोई दुआ करने वाला, मैं उसकी दुआ कबूल करूं। हल मिन मकरूबिन, है कोई मुसीबत ज़दा, है कोई परेशान हाल कि उसकी मैं परेशानी के दूर को दुआ करे, तो अल्लाह के लिए फरमाते हैं सबकी दुआ कबूल कर लेते हैं। तमाम मुसलमानों की दुआएं कबूल होती है, जो मतलब दुआ है, जो दुआ उसने मांगी है, दुआ कबूल होती है। इल्ला ज़ानियतन तसआ बिफरजिहा, सिवाय उस जानिया के
جس میں اپنے شرمگاہوں کے ساتھ پیشہ اور کام کاج کرتی ہے، زنا کرتی ہے، ایسے لوگ کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ سوچو، یہ حدیث جو ہے امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں سزا یہ کہ دنیا کے اندر جو زنا کرتے ہیں ان کی سزا یہ کہ ایسے لوگوں پر عجیب و قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ ایک بیماری ختم نہیں ہے، دوسری بیماری اور ایسی بیماری اس کی موت اتنے برے انجام ہوتی ہے، اتنی خطرناک اس کی بیماری لاحق ہوتی ہے، لا علاج بیماری ملوث ہو جاتے ہیں۔ اللہ پیارے فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، جب تم نے 5 باتیں 5 گناہ مبتلا ہو جاؤ، جب تم میں 5 گناہ عام ہو جائے، اب میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم وہ 5 گناہ میں مبتلا ہو۔ اس میں سے پہلا یہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافهم الذین مضوا۔ اللہ اکبر۔ سنن ابن ماجہ کی کتاب الفتن میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس گاؤں میں، جس بستی میں، جس شہر میں، جس علاقے میں زنا عام ہو جائے، آج ہمارے گاؤں میں، سوسائٹی میں زنا عام ہو چکا ہے، زنا عام ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں پیارے نبی جس گاؤں میں، جس محلے میں زنا عام ہو جائے، حتیٰ یعلنوا بہا، یہاں تک کہ اعلانیہ طور پر کھلے عام زنا کرنے لگے، پیارے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے طاعون کی بیماری لاحق ہوتی ہے، والاوجاع، ایسی بڑی بڑی بیماری لاحق ہوتی ہے کہ اس کے اسلاف نے، اس کے آباء اجداد نے ایسی بیماری کبھی سنی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یہ 5ویں سزا ہے۔ چھٹی سزا یہ کہ جو لوگ جس گاؤں میں، جس معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب اب آنا ضروری ہے۔ اب بعید نہیں کہ ایسے گاؤں پر اگر کہیں کوئی اپنے گاؤں میں زنا کر رہے ہیں، زنا ہو چکا ہے، نہ اس کو پاک کیا جاتا ہے، نہ اس کو پاک کیا جاتا ہے، نہ اس کو مارا جاتا ہے، شریعت کے طور پر حدود اس کو پر نافذ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ کھلے عام سڑکوں پہ گھومتا ہے، تو ایسے گاؤں پر بھی، اللہ اکبر، دھیان سنیں، ایسے گاؤں پر بھی، ایسے بستی پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ میرے گاؤں والوں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ہے، کہتے ہیں اذا ظہر الزنا والربا، اذا ظہر الزنا والربا فی قوم فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ۔ کہتے ہیں جس گاؤں میں زنا اور سود عام ہو جائے، جس گاؤں میں، جس بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے، تو انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنی طرف توجہ، آپ ہماری طرف توجہ ہو جائیں۔ زنا کی یہ 6 سزائیں۔ نمبر 7، زنا کی دنیاوی سزا کیا ہے؟ شادی شدہ ہے، اگر مرد عورت شادی شدہ ہے، زنا کر لیا، ان کی کیا سزا ہے بتا سکتے ہیں؟ کوئی زنا کر لیا ہے، بولے کوئی؟ زنا کرنے والے مرد عورت شادی شدہ، ان کی کیا سزا اسلام کے؟ جی ماشاءاللہ، بارک اللہ، اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اسے زنا کرنے والے مرد عورت اگر شادی شدہ ہے تو اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اسے مارا کیسے جائے گا؟ ڈائریکٹ سوٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ تڑپ کے مارا جائے گا۔ شریعت اسلامیہ قانون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان بھی، جو مسلمان بھی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو اس بات کی گواہی دے، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خون حلال نہیں۔ جو اس بات کی گواہی دے اللہ اس کے رسول کی، تو ایسے لوگوں کے لیے خون حلال نہیں۔ آپ خون نہیں بنا سکتے سوائے 3 طریقے ہیں، 3 اسباب ہیں، 3 صورتیں ہیں، 3 شکلیں ہیں کہ آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ قصاص کے بدلے قصاص، یعنی اگر کوئی کسی کو مرڈر کیا تو اس کے بدلے میں اس کو بھی مرڈر کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، اسلامی قانون۔ نمبر 2 کہ السیب الزانی، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والے عورت اگر شادی شدہ ہے، زنا کر لیا ہے، تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا، یعنی رجم کر دیا جائے گا۔
नंबर 3 में अगर कोई इस्लाम से मुर्तद हो गया तो उसे भी दुनिया में रहने का हक नहीं। इसे बुखारी मुस्लिम की हदीस है। इसी तरीके से आखिरी सजा है। उसके बाद कयामत के दिन जो सजाएं हैं, 2 सजा बयान करके अपनी बात मैं खत्म करने जा रहा हूं। 8वीं सजा, अगर कोई शख्स जिना कर लिया है, अगर शादीशुदा नहीं है, गैर शादीशुदा जिना कर लिया है या कर ली है, उनकी सजा क्या है? अगर कोई शादी नहीं की, जिना कर लिया, उनकी सजा क्या है? बोलो भाई। अगर कोई अभी शादी नहीं की, जिना हो गया, क्या सजा है इसकी? 100 करो। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। बोलना है, इल्म होना, शरीयत के कम से कम इल्म होना हमारे पास। अगर कोई शख्स जिना कर लिया है या कर लिया है, शादीशुदा नहीं है, तो उसे पूरे पब्लिक के सामने आज क्या है, दबा दे जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। हमारे गांव में किसी के यहां हुआ तो फौरन उसको चुप करा दिया जाता है। पहले, आज से मुझे अभी तक मालूम है कि जब ऐसे किस्म होते थे, हमारे जामे मस्जिद में जाकर उसको पाक किया जाता था। लेकिन आज वो माहौल नहीं दिख रहा है। इसी वजह से हमारे गांव और समाज के अंदर बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं और अजाब भी आ रहा है। तो नंबर 8 में अगर कोई शख्स जिना कर लिया है, तो अगर शादीशुदा नहीं है तो उसकी सजा ये है कि पूरे 100 गोले मारे जाएंगे, और सही मुस्लिम की रवायत है तो उसे 1 साल के लिए उस गांव और बस्ती से निकाल दिया जाएगा। 1 साल तक उस गांव में रहने का हक नहीं रहता। ये दुनियावी 8 सजाएं हैं। और उखरवी सजा यानी कया मरने के बाद 2 सजाएं, ज्यादा हम बयान नहीं करेंगे क्योंकि एक लंबी लिस्ट है। मेरे मोहतरम भाई, एक हदीस सुनाने जा रहा हूं, बड़े तवज्जो चाहूंगा। अगर आपने इस हदीस को समझ लिया तो आपने मेरे पूरे तकरीर का खुलासा समझ लिया है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, प्यारे नबी फरमाते हैं, सलासतुन ला युकल्लिमुल्लाहु यौमल क़ियामह वला युज़क्कीहिम वला यंज़ुरु इलैहिम वला यंज़ुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम, शैखुन ज़ानिन व मलिकुन कज़्ज़ाबुन व आइलुन मुस्तकबिर। रवाहु मुस्लिम किताबुल ईमान, हदीस नंबर 107 107 में हदीस मौजूद है। प्यारे नबी फरमाते हैं, रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा है, कहते हैं कि 3 किस्म के लोग हैं इस कायनात के अंदर जो सबसे बदतरीन किस्म के लोग हैं। 3 किस्म के ऐसे लोग हैं, सलासतुन ला युकल्लिमुल्लाहु यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों से कलाम तक नहीं करेगा, बात तक नहीं करेंगे। एक सजा। नंबर 2, वला यंज़ुरु इलैहिम, ना उनकी तरफ देखेंगे, वला युज़क्कीहिम, ना उन्हें पाक करेगा अल्लाह ताला, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। आप हमारे तरफ होते हो जो हदीस आप समझने की कोशिश करें। मैं किसी कहानी आपको नहीं सुना रहा, मैं आप किसी की बात नहीं सुना रहा हूं, नबी की हदीस आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं। 3 किस्म कैसे लोग हैं कि कहते हैं प्यारे नबी की 4 सजाएं हैं आखिरत में। नंबर 1 के ना अल्लाह बात करेंगे, नंबर 2 ना उनको पाक करें, गुनाहों से ना पाक करेंगे, ना उनकी तरफ देखेंगे, वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। पहला शख्स 3 में से, शैखुन ज़ानिन, बूढ़ा ज़ानी, जवानी खत्म, बचपन खत्म, जवानी बचपन खत्म होने के बाद बुढ़ापा में ज़िना कर रहा है। ज़िना वैसे भी हराम है, ज़िना कबीरा गुनाह है, ज़िना है, चाहे जिस उम्र में भी किया जाए उसकी सजाएं हैं, मैंने अभी बताया। लेकिन एक आदमी है, एक शख्स है, मुझे शर्म आ रही है बोलने में, बूढ़ा आदमी है, शैखुन ज़ानिन, बूढ़ा आदमी है, उसके बाद ज़िना कर रहा है, असबाब खत्म है, सारे वसाइल, अभी वो एक पैर कब्र में है, उसके बावजूद ज़िना कर रहा है। प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐसी सजाएं हैं, ऐसी सजा है कि क़यामत के दिन अल्लाह ना कलाम करेगा, ना पाक करेगा, ना उसकी तरफ देखेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। कैसे बर्दाश्त करेंगे आप? कैसे चंद लम्हों की लज्जत, चंद मिनट की लज्जत आपको क़यामत के दिन खून के आंसू रोएंगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा। मेरे मोहतरम भाइयों, नंबर 2 में मलिकुल कज़्ज़ाब, जो झूठा बादशाह है। नंबर 3 में एक तकब्बुर करने वाला फकीर होगा। आखिरी चीज बयान करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आखिरी सजा, उखरवी सजा क़यामत के दिन। मेरे मोहतरम भाइयों, सही बुखारी की बड़ी मशहूर रिवायत है। हज़रत समूरा बिन जुंदुब कहते हैं, हज़रत समूरा बिन जुंदुब कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब भी आप ख्वाब देखते तो ख्वाब की ताबीर फजर की बात नमाज पढ़ के सवाल करते, क्या आप में से कोई ख्वाब देखा है?
साहबा कहते हैं हम में से कोई अगर ख्वाब देखते तो हम बताते और ख्वाब की ताबीर हमारे लिए बताते। कहते हैं एक दिन की बात है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन मामूल सवाल किया कि आपने से कोई ख्वाब देखा? साहबा ने कहा कि हम में से किसी ने ख्वाब नहीं देखा। प्यारे नबी फरमाते हैं कि आज की रात मैंने खुद ख्वाब देखा। दो शख्स आए, असल में वो हज़रत जिब्राइल और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। मुझे उठा कर ले गए और अर्ज़ मुक़द्दसा पर ले गए। मैंने वहां कई मराहल देखे, कई वाक़यात देखे। अलगज़ लंबा वाक़या है, तक़रीबन सहीह बुखारी की 150 सफ़ात में हदीस, लंबी सफ़ात है, बहुत लंबी हदीस है। कहते हैं एक मरहले पर गुजरा, एक तन्नूर जैसी जगह पर हमारा गुजर हुआ जिब्रील के जरिए। देखा कि नीचे अंदर का हिस्सा बड़ा पेशाबी है और ऊपर बड़ा तंग है। वहां मैंने देखा कि वहां नंगे मर्द और नंगी औरतें हैं, नंगे मर्द और नंगी औरतें हैं। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन बदनसीब लोग हैं जो नंगे हैं और मर्द हजरात भी हैं और नीचे से आग के शोले भड़क रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आग में हैं, चीख भी रहे, चिल्ला रहे हैं और तड़प रहे हैं। ये कौन बदनसीब लोग हैं? प्यारे नबी से बताया जाता है फहुमुस्सुनात, ये जिना करने वाले मर्द हैं, जिना करने वाले औरत हैं जो दुनिया में जिना करती थी, अपने शर्मगाहों की, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत नहीं करती थी। मेरे मोहतरम भाइयों, जिना की ये कुछ सजाएं, जिना की कुछ हलाकतें थी। अलगर जिना की एक कबीरा गुनाह है। हमारे माशरे समाज के अंदर ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अल्लाह से हम दुआ करें, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे समाज और गांव में ये जो गुनाह आम हो रहा है, अल्लाह इससे मुझे और आपको बचने की तौफीक ना फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको अपनी निगाहें, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने की तौफीक ना फरमाए। अल्लाह हम में से जो लोग गुनहगार हैं, अल्लाह उनकी गुनाहों को, बल्कि हम में से हर एक गुनहगार हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को, खताओं को अल्लाह माफ अता फरमा। अल्लाह हम हमारी आज के छोटे से इस प्रोग्राम को, इस बयान को अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए। जो हजरात भी सुन रहे हैं, जो हजरात भी हमारे माए बहन सुन रही हैं, जो दूर दराज से आए हुए हैं, हमारे आने को, हमारे बैठने को, हमारे सुनने को अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।